Okay. Yes, sir. Okay then. So good morning, everyone. So in the continuation of the Fourier series, in this lecture, we shall study about Fourier series expansion of even and odd functions. And in the next, we define Fourier half-range series expansions. So let us recall in the previous lecture, we have studied that let fx be a periodic function with period 2l and piecewise continuous in the interval minus L to plus L. Then the Fourier series of fx is given by this one. It means हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास कोई फंक्शन fx गिवन है जो कि क्या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2l है, किसी इंटरवल माइनस L to L में डिफाइन है. तो उस फंक्शन की फूरियर सीरीज इस फॉर्म में थी fx इक्वल्स टू a नॉट प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos of n pi x upon L plus bn sin of n pi x upon L, where a0 equals to 1 upon 2L minus L to plus L fx dx, an equals to 1 upon L integration from minus L to plus L fx cos of n pi x upon L dx, and bn equals to 1 upon L minus L to plus L fx sin of n pi x upon L dx. सो ये हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन fx गिवन है किसी इंटरवल माइनस L टू प्लस L में जिसका पीरियड कितना है 2L है, तो उसकी फूरियर सीरीज इस फॉर्म में गिवन होगी हमारे पास में, है ना, जहाँ पे a नॉट an और bn क्या है हमारे पास में फूरियर कोफिशिएंट्स है जिनकी वैल्यूज इन इंटीग्रल से हम इवेल्युएट कर सकते हैं. एंड सिमिलरली लेट fx बी पीरियोडिक with period 2 pi and piecewise continuous in the interval minus pi to plus pi, then the Fourier series of fx is given by this relation fx equals to a naught plus summation 1 to infinity an cos of nx plus bn sin of nx, where a naught is given by this integral, an is given by this integral, and bn is given by this integral. Okay. तो इट मींस हमारे पास में कोई फंक्शन fx गिवन है जो किसी माइनस पाई से प्लस पाई इंटरवल में डिफाइन था और जिसका पीरियड कितना है 2 पाई है, तो उसकी फूरियर सीरीज ये रिलेशन होगा जहां पे a नॉट an और bn के हमारे पास में फूरियर कोफिशिएंट्स है और जिनकी वैल्यू हम इन इंटीग्रल से इवेल्युएट कर सकते हैं. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी डिफाइन फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. इट मींस हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन है जो आइदर इवन है या ऑड है, तो उसका फूरियर सीरीज एक्सपांशन. अरे अपने आप को म्यूट कीजिए, कौन है ये चित्रेश, राइट. So now we define Fourier series expansion of even and odd functions. So let fx be a function defined in the interval minus L to plus L. Then fx is even function on the interval minus L to plus L if f of minus x equals to f of x. आपके पास में कोई फंक्शन fx गिवन है, वो इवन फंक्शन कब होगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो. इट मींस f of minus x equals to function of x in the interval minus L to plus L, and the function fx is odd function if f of minus x equals to minus times of function of x in the interval minus L to plus L. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हमारे पास में कोई फंक्शन इवन है या ओड है. फॉर एग्जांपल x की पावर 2n cos of n pi x upon L are even functions on the interval minus L to plus L. इट मींस यदि हम यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो दोनों एग्जांपल के अंदर तो हमारे पास में ये दोनों फंक्शंस क्या बनेंगे, इवन फंक्शंस बनेंगे. सिमिलरली x की पावर 2n plus 1 and sin of n pi x upon L आर ओड फंक्शंस. इट मींस हम यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ x की पावर 2n बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ sin of n pi x upon L. So these are example of even and odd functions. Now we know that these two properties, integration from minus L to plus L fx dx, this is equals to 2 times 0 to L fx dx if fx is even function. ये आप लोगों को पता होगी ये प्रॉपर्टी फर्स्ट वन. यदि हमारे पास इवन फंक्शन गिवन है तो उसकी लिमिट यदि माइनस L से प्लस L है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 times 0 to L fx dx. And if your function fx is odd function, then this limit from minus L to plus L fx dx goes to
0, right? So these two properties are very important to drive the Fourier series expansion for the even function and odd functions, right? Now first we find the Fourier series expansion for the even function. If fx is even function on the interval minus L to L with period 2L, then we have the following Fourier series. Fx equals to a naught plus summation 1 to infinity an cos of n pi x upon L, जहां पे a नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2L टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस L टू प्लस L fx dx. नाउ आवर गिवन फंक्शन fx इज इवन फंक्शन. यदि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस बिकम्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L fx dx. तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन L टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L fx dx. क्लियर? यहाँ पे a नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 upon L times integration from 0 to L fx dx. and now an becomes, an की definition हमारे पास में क्या है, ये वाली definition है 1 upon L times integration minus L to plus L fx cos of n pi x up L dx. Now if we use this property here again, then this becomes 2 upon L times integration from 0 to L fx cos of n pi x upon L dx. Clear? नाउ bn, यहाँ पे यदि आपको फूरियर सीरीज का एक्सपांशन पता है, यहाँ पे bn है ना, ये वाला. नाउ bn इक्वल्स टू दिस वन. नाउ इफ योर फंक्शन fx इज इवन फंक्शन एंड अब हमको पता है कि sin x क्या है, ऑड फंक्शन है, सो इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बनेगा. यस और नो? यस सर. आपके पास में fx इवन फंक्शन है बट sin x हमारे पास क्या ऑड फंक्शन है. So by the application of the integration property of odd function, this integral goes to 0. Yes or no? Yes sir. यस सर. यस सर. It means आपकी bn की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी. It means ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी हमारे पास में. तुम्हारे पास में कौन दो टर्म्स बचेगी, a नॉट और an वाली टर्म्स बनेगी. ठीक है? So it means if your function fx is an even function in the interval minus L to L, then your Fourier series is given by this one. Clear? तो जब भी आपके पास में कोई प्रॉब्लम गिवन हो किसी इंटरवल माइनस L टू प्लस L में, तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपका फंक्शन कहीं इवन या ऑड फंक्शन तो नहीं है उस इंटरवल के अंदर. यदि आपके पास फंक्शन इवन फंक्शन है तो हमको ओनली ये वाली सीरीज मेंशन करनी है जहां पे a नॉट की वैल्यू हमको इस इंटीग्रल से निकालनी है और an की वैल्यू हमको इस इंटीग्रल से निकालनी है, और bn आपका ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा बिकॉज हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है. Clear? यस सर. Yes sir. All right. Now next one is if fx is a odd function on the interval minus L to plus L, then we have the following Fourier series. fx equals to summation 1 to infinity bn sin of n pi x upon L, where bn is given by this one 2 upon L times integration 0 to L fx sin of n pi x upon L dx. Because of this definition, हमारे पास में ये डेफिनेशन है. यदि हमारे पास में fx ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0. a नॉट गोज टू 0 बिकॉज योर गिवन फंक्शन fx इज ऑड फंक्शन. ठीक है, तो a नॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी. an हमारे पास में कितना बन जाएगा, fx ऑड फंक्शन है, cos x हमारे पास में क्या है, इवन फंक्शन है. सो दिस इंटीग्रांड बिकम्स ऑड फंक्शन. यस और नो? Yes sir. तो an की Yes sir. Yes sir. जाएगी ना, 0. और bn हमारे पास में नॉन जीरो रहेगा बिकॉज हमारे पास में fx क्या है, ऑड फंक्शन है और साइन भी ऑड फंक्शन है. सो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन बिकम्स इवन फंक्शन. तो इसकी वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो रहेगी और वो किसके बराबर बन जाएगा हमारे पास में 2 upon L times integration from 0 to L fx sin of n pi x upon L dx. क्लियर? तो इट मींस हमारे पास में यदि fx ऑड फंक्शन है तो उसकी सीरीज इस फॉर्म में बनेगी जहां पे ओनली साइन की टर्म्स प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, कॉस की टर्म्स हमारी 0 बन जाएगी और कांस्टेंट टर्म भी कोई 0 रहेगी हमारे पास में. बट यदि हमारे पास में इवन फंक्शन गिवन है तो उसमें कांस्टेंट टर्म प्लस कॉस की टर्म्स मिलेगी आपको, साइन की कोई टर्म्स नहीं मिलेगी. क्लियर? और यदि आपको पता है लास्ट लेक्चर में यदि कोई हमारे पास में फूरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है तो वो किस नंबर को कन्वर्ट करती है, कंटिन्यूअस फंक्शन तो fx को कन्वर्ट करती है.
तो यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में एफ एक्स हमने क्या अज्यूम किया, इवन फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में इवन फंक्शन है, तो राइट हैंड साइड भी आपको दिख रही है कि अब ये इवन फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पे कॉस क्या है, इवन फंक्शन है। यस नो? Yes, sir. इट मीन्स आपका Yes. लेफ्ट हैंड साइड भी यदि इवन फंक्शन है तो आपका राइट हैंड साइड भी आपको इवन फंक्शन मिलेगा। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, यदि आपके पास में इवन फंक्शन है तो उसकी सीरीज किसकी फॉर्म में मिलेगी, कॉस की फॉर्म में मिलेगी, बिकॉज ये साइन की फॉर्म में नहीं हो सकती है। साइन की फॉर्म में होने का मतलब क्या है, ऑड वाली टर्म्स में आपको मिलेगी ना। यस सर। सिमिलरली यदि आपके पास में एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो आपकी जो सीरीज है वो साइन की फॉर्म में मिलेगी आपको, बिकॉज साइन हमारे पास में क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कॉस की टर्म्स में नहीं मिलेगी, तो ये हमारे से माइंड में फिक्स होना चाहिए। यदि आपका पास फंक्शन ऑड फंक्शन है तो साइन की टर्म्स रहेगी, कॉस की कोई टर्म नहीं रहेगी, और कांस्टेंट की कोई टर्म हमारे पास जीरो बन जाएगी। यदि हमारे पास में एफ एक्स इवन फंक्शन है तो कांस्टेंट टर्म प्लस कॉस की टर्म्स रहेगी, साइन की टर्म सारी वेनिश हो जाएगी। क्लियर? सो लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। Find the Fourier series expansion of the periodic function f(x) equals to x in the interval minus pi to plus pi with condition that f of x plus 2 pi equals to fx. It means हमारे पास में फंक्शन गिवन है x जिसका पीरियड कितना है 2 पाई है, तो हमको इसकी फूरियर सीरीज एक्सपांशन निकालना है। तो आपको पता है f(x) equals to x जो फंक्शन है ये क्या कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑड फंक्शन है, इसका मतलब आपको कौन सी सीरीज मिलेगी, साइन वाली सीरीज मिलेगी, Yes, sir. because if your function f(x) is an odd function then your Fourier series of this form। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे पीरियड कितना है 2 पाई गिवन है। now since given function is an odd function therefore a naught and an equals to 0, it means constant term और जो कोफिशिएंट है cos x का वो दोनों टर्म्स क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। hence the Fourier series is given by f(x) equals to summation 1 to infinity bn sin of n pi x upon pi। यहाँ पे पाई का मतलब क्या है, l की वैल्यू है यहाँ पे ना, हमारा इंटरवल यहाँ पे देखें -l to +l है, तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई आ रही है ना, तो हमने यहाँ पे पाई पुट कर दिया। ठीक है, सो दिस बिकम्स समीशन 1 to infinity bn sin of nx where the Fourier coefficient bn is given as follows। bn की डेफिनेशन से bn की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 upon pi times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi x sin x dx, बिकॉज हमारे पास में bn यहाँ पे कितना है, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे l की जगह क्या पुट करना है आपको, सिंपली पाई पुट करना है, तो हमारे पास ये इंटीग्रल बनेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, इंटीग्रेशन 0 to pi x sin x dx की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व कीजिए आप लोग। सर यस, एक डाउट। हाँ डाउट बेटा इसके कंटिन्यूएशन के बाद, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में डिस्कस करते हैं ना, स्लाइड नंबर नोट कर लो अपना। ओके ठीक है, तो अभी इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो आप। Sir, 2 upon n into -1 to the raised to power n plus 1. ये वाली वैल्यू मिल रही है, Yes, sir. इट मींस bn की वैल्यू हमारे पास मिल रही है 2 अपॉन टाइम्स -1 to the power n plus 1। Yes, sir. Okay then. So therefore the Fourier series expansion of the given function is given by f(x) equals to x equals to 2 times। अब यहाँ पे जो ये bn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, और इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास में सीरीज बनेगी sin x minus sin 2x upon 2 plus sin 3x upon 3 minus sin 4x upon 4 plus and so on। तो ये हमारे पास में Fourier साइन सीरीज मिलेगी फॉर द गिवन ऑड फंक्शन x in the interval -pi to
प्लस पाई। देखो फूरियर सीरीज की कितनी ब्यूटी है। इट मींस हमारे पास में राइट हैंड साइड की जो साइन की सीरीज बन रही है उसका समीशन आपको क्या मिल रहा है, सिंपली एक्स मिल रहा है एक तरह से, है ना। यस सर। इसको हम यदि रिवर्स वे में सोचें, हमारे पास में कोई इनफाइनाइट सीरीज गिवन है जिसकी साइन की टर्म्स गिवन है सारी की सारी, उनका समीशन किसके बराबर मिल रहा है हमको, एक्स के बराबर मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फूरियर सीरीज। ठीक है, now next example, find the Fourier series expansion of the function fx equals to x square in the interval -2 to +2। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन है, इवन फंक्शन है ना। तो इवन फंक्शन में हमारे पास में कौन सी सीरीज मिलेगी, कॉस की टर्म्स वाली सीरीज मिलेगी, है ना, विद कांस्टेंट टर्म, है ना। सो द गिवन फंक्शन fx equals to x square is an even function, therefore bn equals to 0। इट मींस साइन का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। Hence the Fourier series is given by fx equals to a0 plus summation 1 to infinity an cos of n pi x upon 2। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 2 मिल रही है ना, तो हमने यहाँ पे cos of n pi x upon 2 हो जाएगा। क्लियर। Now where the coefficients a0 and an are given as follows। a0 कितना बन जाएगा, 1 upon l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l x स्क्वायर dx। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में कितनी वैल्यू मिलेगी, 4/3। ठीक है, एंड an इक्वल्स टू कितना बनेगा हमारे पास में, 2/l। l की वैल्यू कितनी है, 2 आ रही है, सो दिस इज 2/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l, इट मींस 0 to 2 x स्क्वायर cos ऑफ n pi x upon 2 dx। अब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाय यूजिंग आइलेट वाला मेथड है ना, बाय पार्ट्स वाला जो मेथड है। cos ऑफ n pi x को आप सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट को आप मान लीजिए x स्क्वायर। तो 4/n² - 1 की पावर n। चेक करो बेटा एक बार, अरे चेक करो एक बार इंटीग्रल की वैल्यू। सर 16 into -1 raised to power n upon n square pi square। ये जो विजिबल है मेरी स्लाइड पे वही है आपकी वैल्यू। यस सर। यस सर। तो जो आप इससे पहले आप बता रहे थे, एक बार अपने इंटीग्रल की वैल्यू चेक कर लें ना, थोड़ा कैलकुलेशन कहीं हो सकती है मिस्टेक हो जाए आपसे, है ना। सो an इक्वल्स टू 16/n² pi square टाइम्स -1 की पावर n। अब now substitute the value of a0 and n in the given Fourier series, then we find fx equals to 4/3 plus 16 upon pi square summation 1 to infinity -1 की पावर n upon n square cos of n pi x upon 2। This is your given Fourier series for the given even function fx equals to x square। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी तक? नो सर।
ये अभी एक एक जो पूछ रहे थे आप में से कोई स्टूडेंट, वो यदि वो एक बार यदि सुन रहे हैं तो एक बार बताएं कहाँ पे डाउट है उनको। सर स्लाइड 8/18 में। 8/18 बताएं बेटा इसमें। सर इसमें ये जो फंक्शन दे रखा है fx, हम्म। इसको सर अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ऑड है कि इवन है? बेटा आपको हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई इवन फंक्शन और ऑड की, ये है, ये हमारे पास कोई फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन है। इवन का मतलब एक्स की जगह आपने -x पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एफ एक्स ऐसा चार आपको मिल रहा है, तो इवन फंक्शन हो जाएगा। और एक्स की जगह -x पुट कर देंगे, यदि माइनस टाइम्स एफ एक्स बन जाता था, हमारे पास फंक्शन कौन सा बनेगा, ऑड फंक्शन Odd। बनेगा। तो यदि हम यहाँ पे बात करें इस फंक्शन की, एक्स की जगह -x पुट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस सर, तो ऑड है, फंक्शन कौन सा बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता ही है वैसे भी इवन फंक्शन का मतलब सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन का Yes। मतलब सिमेट्रिक अबाउट दी एक्स एक्सिस। ठीक है, यस सर हाँ यस। एफ एक्स बराबर एक्स तो सर पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो फिर फोरियर सीरीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है? इसमें कहा फिर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारे पास में जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन, इट मींस हर 2 पाई वैल्यू के बाद में हमारे पास जो फंक्शन का ट्रेंड है वो इसी तरह से रिपीट हो रहा है। तो क्या सर हर बार ऐसे जो इसका पीरियड डिफाइन करके देगा क्या? यस ऑब्वियसली देगा, यदि आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है तो उसका पीरियड भी वो मेंशन करेगा कि हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है। ओके यदि हम सर। ये वाली टर्म की वेनिश कर दें एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू 2 पाई, तो हमारे पास में यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है सिंपली। हम यहाँ से कह नहीं सकते हमारा फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। बट हाँ सर, वही इस पूछ रहा कंडीशन की वजह से क्या बन रहा है हमारे पास में, पीरियोडिक बन रहा है। यस और नो? था। और सर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर? सेम वही कंडीशन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि इसमें, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि हमारे पास इसका पीरियड कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सर अपन ने ये फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिया, उसके बाद ये नीचे ये क्या है ना एफ एक्स बराबर 2 साइन एक्स ये वैल्यूज माइनस, पुट ये की, कैसे? ये bn की वैल्यू हमारे पास में ये वाली हाँ उठा के सर। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, सर। और फिर यहाँ पे जो सीरीज है जहाँ पे n बराबर 1 2 3 ये पुट करेंगे तो आपको ये वाली हाँ। टर्म्स मिल जाएंगी ना। ओके सर। n बराबर 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 मिलेगा ना। सो 2 टाइम्स साइन एक्स, n बराबर 2 पे के लिए मिले कितना मिलेगा, -1 मिलेगा आपको, इट मींस -1/2 साइन 2x। ठीक है, इस तरह से टर्म्स मिल जाएंगे आपको। ये यहाँ पे ये नोट कर लें, यहाँ पे जो फंक्शन एक्स स्क्वायर गिवन है इसका पीरियड कितना है, 4 है हमारे पास में ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पीरियड इंटरवल की लेंथ कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यस सर। तो यहाँ पे मेंशन कर देना है Yes, एफ ऑफ sir. एक्स प्लस 4 इक्वल टू एफ एक्स, है ना। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया इसको, Yes, क्या करना है सर, एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिख दो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस x 4। plus 4. It means your given function x square is periodic function of period 4 in the interval -2 to +2. ठीक है, यस सर। यस सर। all right. Now next one is now find the Fourier series expansion of fx equals to x square in the interval -2 to +2 and hence show that these two results. इट मींस पहले हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फूरियर सीरीज बनानी है -2 से +2 के अंदर, जिसका पीरियड कितना है, 4 है, और हमको ये दोनों रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं। ठीक है, सो द फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ द गिवन एफ एक्स इज गिवन बाय दिस वन। ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल क्या है, सेम यही एग्जांपल है। इसके Yes, अकॉर्डिंग हमारी फूरियर सीरीज क्या बन रही है, ये बन रही है ना। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 4/3 + 16/π स्क्वायर समीशन 1 to infinity -1 की पावर n/n स्क्वायर cos ऑफ n πx/2। इट मींस इस एग्जांपल के लिए मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया है, पर यदि आपको एग्जाम में मिलता है ये कंप्लीट क्वेश्चन तो आपको पहले क्या निकालनी है, फूरियर सीरीज निकालनी है एक्स स्क्वायर की -2 से +2 के बीच में, तो कि इट मींस ये वाला सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो आपको ये सीरीज मिलेगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो पहले हम जो फूरियर सीरीज निकालने के लिए जो प्रीवियस एग्जांपल का सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
ए नॉट और ए एन की वैल्यूज निकालेंगे और इस सीरीज में पुट कर देंगे, हमारे पास ये रिलेशन मिलेगा आपको, राइट। नाउ नेक्स्ट वी प्रूव दीज टू रिजल्ट्स, ये दोनों रिजल्ट हमको प्रूव करने हैं। सो हियर at the end points of the interval minus L to plus L, the Fourier series converges to 1/2 times f of minus L plus f of L minus। यदि आप लोगों को याद है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है कि कोई गिवन फंक्शन किसी इंटरवल माइनस L to plus L में कंटिन्यूअस है, तो वो किसको कन्वर्ट करता था? fx को कन्वर्ट करता था, है ना। बट यदि किसी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की हम बात करें, एवरेज को करता था, एवरेज को कन्वर्ट करता था। यहाँ पे हमारे पास में आप देखिए माइनस L to प्लस L में कोई हमारा फंक्शन डिफाइन है इंटरवल के अंदर, और उस फंक्शन का पीरियड कितना है? 2L है। तो इस पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास में एंड पॉइंट्स पे किस तरह से बिहेव करेगा? डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करेगा, यस और नो? यस सर। बिकॉज यदि हम इसी Yes, की sir. बात करें, या जो अभी हम लास्ट एग्जांपल x वाला देखें, सिंपल सा fx इक्वल टू x की हम बात करें, ये तो ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है। यस सर। यस सर। इसमें यदि हम देखें माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, ठीक है, तो इस पाई की बात करें हम, पाई पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? x आ रही है इस माइनस पाई से प्लस पाई इंटरवल में। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा? पाई से 3 पाई बनेगा, यस और नो? यस यस सर, यस सर, हमारा पहला इंटरवल क्या है? माइनस पाई से प्लस पाई। इट मींस इंटरवल की विड्थ कितनी आ रही है? 2 पाई आ रही है। यस सर, नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा? यस सर। पाई से 3 पाई बनेगा, है ना। नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा आपका? पाई से 3 पाई बनेगा। यस सर। यस सर। मींस आपके पास जो फंक्शन का जो बिहेवियर है, जो ओरिजिन से पास हो रहा था, वो वहां पे किससे पास होगा? कौन से पॉइंट से पास होगा? 2 पाई से 2 पाई से 2 पाई से, है ना। बिकॉज यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है, ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। जब हमारा नेक्स्ट इंटरवल पाई से 3 पाई बनेगा, तो वो कहां से पास होगा? 2 पाई से पास होगा, ठीक है। हाँ 2 2 पाई, पाई से। तो इसमें हमारे पास में जो एंड पॉइंट्स में हमारा फंक्शन का बिहेवियर क्या बना है? डिसकंटिन्यूटी टाइप का बन रहा है। यस सर। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है हमारे पास में एंड पॉइंट्स, तो उसमें हम क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। सो एवरेज वैल्यू आप देखेंगे हमारे पास में कोई क्लोज इंटरवल गिवन है, तो इसकी हम क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे माइनस L पे, तो और प्लस L पे क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। बिकॉज हमारे पास इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल है। तो बिकॉज माइनस L के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू माइनस L एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू L, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एवरेज ले लेंगे दोनों का। माइनस L पे तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ पे प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू माइनस L, एंड L माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू प्लस L, ठीक है। सो इन दोनों का एवरेज बन जाएगा 1/2 टाइम्स दिस वैल्यू। तो आपको ये सिंपल है कि हमारे पास में एंड पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू के बराबर बन जाएगी फंक्शन की वैल्यू। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 2, यदि x इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे? इसी इंटरवल के एंड पॉइंट से, यस सर। x इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है? एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है। इट मींस डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बन जाएंगे इसके। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? एवरेज ऑफ दिस वन। सो एवरेज कितना बन गया? 4 बन जाएगा। f ऑफ माइनस 2 प्लस fx हमारे पास कितना है? x स्क्वायर गिवन है, तो इट मींस f ऑफ माइनस 2 प्लस की वैल्यू 4 हो जाएगी। f ऑफ 2 माइनस की मतलब 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 मिल जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 इन रिलेशन 7, इस इक्वेशन में आप x इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, है ना। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी मिलेगी आपको? 4 मिलेगी। तो 4 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 16 अपॉन पाई स्क्वायर समीशन 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर कॉस ऑफ n पाई। बिकॉज यहाँ पे x बराबर 2 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? कॉस ऑफ n पाई, ठीक है। और आपको पता है कॉस ऑफ n पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे माइनस 1 की पावर n ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो माइनस 1 की पावर कितनी हो गई? 2 1 हो जाएगी।
इट मीन Yes, सारी sir. की सारी टर्म्स कौन सी बन जाएगी, प्लस वाली बन जाएंगी आपके पास में। तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, 4/3 प्लस 16/π² समीशन 1 to infinity 1/n²। नाउ अब यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली 4/3 आप लेफ्ट साइड में लेके जाते तो कितना बन जाएगा, 4 माइनस 4/3, इट मीन्स 8/3 बन जाएगा। 4 माइनस sir. 4/3 8/3 इक्वल टू 16/π² है। 16/π² को भी आप लेफ्ट में लेके चले जाइए तो कितना बन जाएगा, π²/6 बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes, Yes, sir. sir. और ये वाली जो सीरीज है इसकी वैल्यू कौन सी बनेगी, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमारे पास में ये एक रिलेशन मिलेगा जो कि हमको ये वाला रिजल्ट दे रहा है, फर्स्ट वाला। क्लियर, एनी डाउट। तो इट मीन्स आपको ये वाला जो रिजल्ट प्रूव करना है, इसमें आपको हीट एंड ट्रायल मेथड एक तरह से सोचना है कि मुझे कौन सी इस इंटरवल के अंदर कौन सी वैल्यू पे ये वाला रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमको यदि आप यहाँ पे देखें, ये कॉस की टर्म्स थी, तो हमारे पास सारी टर्म्स हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए इसका मतलब क्या, ये वाली टर्म भी हमको -1/2n बनानी होगी। और हमको पता है ये -1/2n कब बन पाएगी, जब ये वाली टर्म्स -1n की फॉर्म में हो, बिकॉज यहाँ पे n² की टर्म्स आ रही है सारी की सारी। बस हमको क्या करना है, इसको -1/n को -1/2n बनाना होगा। इसके लिए हमने क्या किया, x = 2 पुट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अभी आप ये सोचिए, ये हमको चाहिए अल्टरनेट टर्म्स चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो कब मिलेगी हमको, X equals to 1 पे 1 पे 1 पे मिल जाएगी आपको। देखो सर यहाँ पे x = 0 पे सर। 0 पे, बिकॉज ये cos 0 की वैल्यू 0 कितनी मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। इट मीन्स इस टर्म का हमारे पास में जो वेरिएशन है वो खत्म हो जाएगा यदि हम x = 0 पुट कर देंगे, बिकॉज ये टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू देगी 1। बट यदि आपने x = 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास में कितनी बन जाएगी, cos of nπ/2 बन जाएगी आपकी, है ना। अब nπ/2 में जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज, nπ/2 वैसे भी अल्टीमेट 0 बन जाएगा। इट मीन्स पूरी की पूरी टर्म्स क्या बना जाएगी हमारे पास में, वैनिश हो जाएगी आपके पास में। Yes, देखो ना? sir. तो x = 1 की तो हम बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज x = 1 पे ये सारे टर्म्स क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगे ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसको प्रूव करेंगे x = 0 के लिए। अब आप ये देखेंगे, ये x = 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। Yes, sir. कंटिन्यूअस इट मींस बार बार Yes, sir. जो इसको कन्वर्ट करेगी, f(0) को कन्वर्ट करनी चाहिए। f(0) का मतलब 0। So next, at x = 0, the given function is continuous. So therefore, the series converges to f(0) = 0. So therefore, 0 = 4/3 plus 16/π² summation 1 to infinity -1/n/n²। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस टर्म्स को यदि लेफ्ट में लेके जाते हैं तो -4/3, और ये भी बन जाएगा। इस सीरीज का एक्सपेंशन आप करेंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी मिलेगी आपको, -1/1²। सेकेंड टर्म मिलेगी 1/2²। थर्ड टर्म मिलेगी -1/3²। सो इट मीन्स यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा -16/π²। माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ से कैंसिल आउट, इट मीन्स प्लस हो जाएगा। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये वाला रिलेशन मिलेगा। ठीक है, Yes, एक बार sir. फिर से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो इस एग्जांपल के अंदर। इट मीन्स हमारे पास यदि इस टाइप के कोई रिजल्ट्स हमको प्रूव करने हैं तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास एंड पॉइंट पे कोई वो वाला रिजल्ट वेरीफाई होता है या नहीं होता है, या किसी मिड पॉइंट के ऊपर ये सेटिस्फाई होता है या नहीं हो पाता है, या कोई किसी इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर सेटिस्फाई होता है या नहीं हो पाता। ये हमको हीट एंड ट्रायल से चेक करना होगा, है ना। सर वो पॉइंट डोमेन में ही होगा या डोमेन से बाहर भी हो सकता है? बस हम कन्वर्जेंसी की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जेंसी क्या होगी, इनसाइड द डोमेन होगी। ओके सर। इट मीन जो पॉइंट होगा वो आपके इस डोमेन के अंदर ही होगा, या तो एंड पॉइंट्स हो सकते हैं या इनके बीच में कोई पॉइंट होगा।
ओके सर। और कोई डाउट हो आप में बताएं, इसमें देखें कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज Fourier half range series expansion. Suppose that a periodic function fx of period 2l is defined on a half interval 0 to l. It means हमारे पास में कोई फंक्शन fx गिवन है जिसका पीरियड कितना है 2l है, बट वो किस हाफ इंटरवल 0 to l में डिफाइन है। Now it is possible to extend the definition of this function fx to the other half minus l to 0 of the interval minus l to plus l, so that fx is either an even function or an odd function. It means हमारे पास में कोई फंक्शन fx गिवन है जिसका पीरियड कितना है 2l है और वो हमारे पास 0 to l में डिफाइन है। इस फंक्शन को हम अदर हाफ में भी डिफाइन कर सकते हैं माइनस l to 0 में, कि हमारा जो फंक्शन fx है इच एक्चुअल इंटरवल माइनस l to plus l में या तो इवन फंक्शन होगा या ओड फंक्शन होगा। अब आपको पता है इवन बनाने के लिए हमको क्या पुट करना होगा यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और इस इंटरवल में ऑड बनाने का मतलब क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो इस हाफ इंटरवल डिफाइन है 0 to l में, और उस फंक्शन का पीरियड कितना है 2l है। तो हम इस फंक्शन एफ एक्स को होल इंटरवल माइनस l से प्लस l में डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस और डिमांड ऑफ दी प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम क्या डिमांड की है ना प्रॉब्लम। ठीक है, तो हेंस fx इज आइदर फूरियर कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज। इट मींस यदि हमारे पास इस फंक्शन को हमने इवन फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर दिया इस इंटरवल माइनस l से प्लस l के बीच में, तो हमारे पास में कौन सी सीरीज मिलेगी, कोसाइन की सीरीज मिलेगी। और यदि हमने इस फंक्शन fx को इस इंटरवल माइनस l से प्लस l में ऑड फंक्शन डिफाइन कर दिया तो हमारे पास कौन सी सीरीज मिलेगी, साइन सीरीज मिलेगी, which depends upon the requirement of a particular problem. क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताएं। एक बार तीनों पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर बताएं। सर सेकंड वाला बताना वापस। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है जिसका पीरियड कितना है 2l पीरियड डिफाइन है, ऑलरेडी डिफाइन है कि हमारा फंक्शन का पीरियड कितना है 2l है, और हमारा फंक्शन 0 से l में डिफाइन है जो कि हमारे पास क्या है हाफ इंटरवल एक तरह से है ना। तो हम इस फंक्शन की फूरियर सीरीज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को इसके जो अदर पार्ट है इस इंटरवल का अदर पार्ट क्या होगा माइनस l to 0 होगा, उस माइनस l to 0 में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल माइनस l से प्लस l में क्या बन सकता है, आइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। जैसे कि मैं fx इक्वल टू x की बात करूं यहाँ पे पर्टिकुलरली, कि सपोज fx इक्वल टू x गिवन है जिसका पीरियड कितना है 2l है। इट मींस हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है इस इंटरवल 0 to l में। अब यदि मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ इस फंक्शन को माइनस l to 0 में, तो इस फंक्शन को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, माइनस l to 0 में कितना बनेगा, x की जगह यदि मैं माइनस x पुट करता हूँ तो क्या बनेगा माइनस x मूल्य मुझे मूल्य मिलेगा ना। तो इट मींस मेरे पास जो fx इक्वल टू x क्या बनेगा माइनस l to प्लस l में ऑड फंक्शन बन जाएगा। यस और नो? यस सर। और यदि मैं Yes, fx की जगह एक्स स्क्वायर लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा फंक्शन यदि एक्स स्क्वायर इस इंटरवल में डिफाइन है तो माइनस l to 0 में भी वो हमारे पास में एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यस सर। इट मींस मेरा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा इवन फंक्शन बन जाएगा माइनस l से प्लस l के बीच में। इट मींस यदि आपको जो फंक्शन है उसको आप प्रॉब्लम के डिमांड के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर सकते हैं इवन या ऑड फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे फाइंड द फूरियर कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन। अब हमको यहाँ पे क्या निकालनी है, कोसाइन सीरीज निकालनी है। प्रॉब्लम के अंदर गिवन हमको कोसाइन सीरीज निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे फंक्शन का इंटरवल कितना आ रहा है बताएं, जो हमारे पास 0 to 4। 0 to 4 आ रहा है। इट मींस हमको इसकी कोसाइन सीरीज निकालने का मतलब क्या है, इसका अदर पार्ट क्या बनेगा, अदर हाफ क्या बनेगा इस इंटरवल का
-4 to 0. -4 to 0. ये हमारे पास 0 to 4 में डिफाइन है, हमको -4 to 0 में इस तरह से डिफाइन करना है कि हमारे पास में जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या बनना चाहिए, -L to L. -L to L का मतलब -4 से +4 के बीच में हमारा फंक्शन कौन सा बनना चाहिए, इवन फंक्शन बनना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगी, फूरियर कोसाइन सीरीज मिलेगी। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम की डिमांड क्या है कि हमको कोसाइन सीरीज चाहिए, तो इसका मतलब हमको क्या है कि इस फंक्शन को हमको अदर हाफ में क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है -4 से +4 में क्या बन जाए, इवन बन जाए। ठीक है, तो हमारी डिमांड क्या है कि हमको इस फंक्शन को इवन फंक्शन बनाना है। क्लियर, प्रॉब्लम की डिमांड है कि हमको कोसाइन सीरीज चाहिए, इसका मतलब हमको इस फंक्शन को क्या बनाना है, इवन फंक्शन बनाना है -4 से +4 के बनकर। क्लियर, ऑलराइट, कोई डाउट? No, sir. Okay. No, sir. Now, as per the requirement of the problem, we need to extend the function fx to the other half -4 to 0 of the interval -4 to +4, so that fx is an even function. Therefore, the Fourier cosine series of fx is given by this relation: fx equals to a naught plus summation 1 to infinity an cos of n pi x upon 4. L की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 4 आ जाएगी यहाँ पे, है ना? 4. ठीक है, अब बताएं ए नॉट और एन की वैल्यू निकाल के बताएं क्या होगी। ए नॉट की डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप यहाँ पे, 1/L। 1/L का मतलब 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 fx dx। क्लियर, इट मींस ए नॉट क्या बन जाएगा आपको हमारे पास में, ये बन जाएगा ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए फर्स्ट इंटीग्रल 0 to 4 को, ए नॉट की वैल्यू आपको 8/3 मिल रही है, नहीं मिल रही। हमने यहाँ पे इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 0 to 4 आपकी लिमिट है इंटीग्रेशन की, हमारा फंक्शन दो पार्ट्स में डिफाइन है, 0 से 2 के अंदर और 2 से 4 के अंदर। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेशन की जो लिमिट है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 0 से 2 के अंदर और 2 से 4 के अंदर। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 0 से 2 के अंदर एंड 2 से 4 के अंदर। 0 से 2 में फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, x² है, और 2 से 4 के अंदर फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है आपके पास में ना। तो फर्स्ट वैल्यू आपको 8/3 मिल रही है, देखें। यस सर। ठीक है, एंड नाउ an कितना बन जाएगा आपके पास में, 2/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 fx cos of n pi x upon 4 dx। अगेन हमारे पास में लिमिट 0 से 4 है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, बिकॉज हमारा फंक्शन क्या है, दो पार्ट्स में डिफाइन है, 0 से 2 के बीच में और 2 से 4 के बीच में। तो हमारे पास में दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x² cos of n pi x upon 4 dx प्लस 2 to 4 टाइम्स cos of n pi x upon 4, यहाँ पे dx में लिखना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे dx मेंशन कर दीजिए आप। इन दोनों इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कीजिए आप। सर Yes? हेलो हाँ बोलो बेटा। सर तो सुन नहीं रही, मेरी आवाज तो जा रही क्या यार। सर हाँ जी बोले। सर मतलब ये सर इंटरवल को एक्सटेंड कैसे करेंगे सर? सर इंटरवल को एक्सटेंड कैसे करेंगे? एक बार बेटे दोनों इंटीग्रल की वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिर हम अपन डिस्कस करते हैं है ना। अभी एक्सटेंड मैं बता दूंगा इसको कैसे करना है, पहले ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू आप निकाल लीजिए एक बार। ये म्यूट कर लीजिए अपने आप को, कौन है?
सो आप सोल्व कर लीजिए इसको, तो an की वैल्यू आपको ये मिलेगी। a नोट an की वैल्यू आप इस रिलेशन में पुट करेंगे, देन यू गेट फाइनल द फूरियर सीरीज गिवन बाय दिस रिलेशन।